कोरोना के बढ़ते असरात को देखते हुए केरल हुकूमत ने सख्त कदम उठाया है। इसके लिए राजधानी तिरुवनंतपुरम में और कड़े कानून करते हुए ट्रिपल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने अगले 1 साल तक के लिए लॉकडाउन के कुछ हिदायतों को मानना ज़रूरी कर दिया है। तिरुवनंतपुरम में अगले 1 हफ्ते के लिए ट्रिपल लॉकडाउन नाफिज करते हुए इस पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई है। लॉकडाउन के दौरान शहर की सभी सड़कें पूरी तरह से बंद रहेंगी। केवल ज़रूरी खदमात को छोड़कर हर हरकत पर पुलिस की नज़र रहेगी। बैरिकेडिंग लगाकर जगह जगह जांच शुरू कर दी गई है। इस दौरान साफ कहा गया है कि लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। We have for the first time put in place triple lockdown for the capital city of Thiruvananthapuram. Triple lockdown is a little harsher than ordinary lockdown. That is how it is to be actually effected is with the cooperation and assistance of the public. This triple lockdown has been imposed for the well-being of the people of Trivandrum city. In the corporation limit, we have yesterday seen there were contact transmission in 22 cases. Therefore, it is a matter of concern, and we are to actually make this triple lockdown successful. The triple lockdown envisage one important thing is that most of the people have to confine themselves at home. All the vehicular traffics we have closed. We have put barricades at most of the roads. It is to ensure that people do not come out from homes. Let them have the bliss of the family and let them stay at home during this triple lockdown period. We have given some exceptions. Local grocery shops we have opened. People can buy from there by going even by walk. Hypermarkets, supermarkets are not open. In a pandemic situation, people have to be self-disciplined, and the spread of the disease can be prevented only by observing and in compliance with all guidelines. But in Trivandrum city, the lockdown was announced at the 11th hour and without any due notice. Had it been announced little earlier, maybe in the morning or at least in the afternoon, people would have purchased the essential commodities like milk, vegetables from the shops. So that caused some difficulties, and it was a bit of surprise. But having said that, I would like to repeat that self-discipline by the people are of utmost importance, and the people should not venture out without any urgent essential requirements, and that only can prevent the spread of the disease. And in Trivandrum city especially, we see a lot of cases without any source. So in a way, yes, we need to have a balanced approach in this pandemic situation. In fact, I also came out because of this suddenness of the lockdown announcement. कोरोना के दौर में मुल्क के कई हिस्सों से जहां कोरोना मरीजों के साथ मनफी बर्ताव और मारने पीटने तक की खबरें आती रहीं, वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो इस कोरोना काल में मिसाल बन रहे हैं। केरला में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और दीगर तंजीमों ने मिलकर कोरोना मरीजों के लिए मसीहा साबित हो रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केरल के कोझिकोड से मुस्बत और खुशाइन तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। क्वारंटीन सेंटर और अपने घरों में क्वारंटीन हुए लोगों की मदद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और दीगर मुस्लिम तंजीमें राहत पहुंचा रही हैं। कुलंगराथसा, जहां पर 14 अफराद अकेले क्वारंटीन में हैं, जबकि 18 अफराद फैमिली के साथ क्वारंटीन सेंटर में हैं। ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का रिलीफ कमेटी का खाना देने का प्रोग्राम है, लेकिन क्वारंटीन में रहने वाले को खाने देने का 1 महीना का ऊपर हो गया, ये देने का शुरू हो गया। गल्फ ममालिक से हालिया दिनों में वतन वापसी के बाद उन्हें घरों में रहने को कहा गया है। ऐसे मुहाजिर मजदूरों के लिए ये पहले काफी मददगार साबित हो रही है।
वहीं दूसरी रियासतों से आकर काम कर रहे ऐसे मजदूरों को भी बेहतरीन खाने और फल तकसीम किए जा रहे हैं। दिन में 3 दिन देता है हम लोग। ये देश का ताकत प्रवासी है। हम लोग इधर अकेले रहता है, ये लोग खाना पीना बनाने के लिए घर से मुश्किल है, इसके लिए ये प्रॉब्लम ये हम लोग सॉल्व कर रहा है। ये सियाफ दंगल का रिलीफ सेल हम लोग 3 दिन खाना बना के ये लोग को देता है। क्वारंटीन में रह रहे कोविड-19 के मरीजों के साथ बेहतर सलूक किया जा रहा है। साथ ही उन्हें घरेलू खाना जैसे बिरयानी और फल वगैरह गिफ्ट किए जा रहे हैं। कुट्टियाडी में तमाम मरीजों और क्वारंटीन में रह रहे लोगों के लिए मोहम्मद अली शिहाब तंगल मेमोरियल रिलीफ कमेटी भी काम कर रही है। ये सभी तंजीमें कोरोना मुतासिरों को तीनों वक्त का खाना ही नहीं, साथ ही दीगर सहूलियात भी फराम कर रही है। हम लोग ये खाना क्वारंटाइन सेंटर में लेके जा रहे हैं। वो लोग अलग अलग जगह में रहता है। इतना दिन चाहिए तो हम लोग देने के लिए, खाना देने के लिए रेडी है। हम लोग अभी दिन में 3 दिन खाना देता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। अभी ये देश में हम लोग का स्ट्रॉन्ग प्रवासी लोग हैं। अभी एक ही जगह में नहीं रहता है, ये लोग अलग अलग जगह में रहता है। हम लोग इसीलिए 3-4 गाड़ी में खाना ऐसे लेके जा रहे हैं। कोविड-19 को लेकर हुकूमतें बेहतरीन काम कर रही हैं, लेकिन बिना समाजी और दीगर तंजीमों की मदद के इतने बड़े मुल्क में सबको राहत देना आसान काम नहीं है। पूरे मुल्क ने उसकी मिसाल तब देखी जब पहले लॉकडाउन के बाद लोग पैदल अपने घरों को निकल पड़े थे। हुकूमत की नजरअंदाजी के बावजूद रास्ते में पड़ने वाले गांवों के आम लोग उनकी मदद को खुलकर सामने आए। अगर ऐसे ही हम सब मिलकर अपने आसपास के परेशान हाल लोगों पर नजर रखें तो बहुत जल्द कोरोना पर फतहयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तमिलनाडु में तूथुकुड़ी के सथनकुलम कस्बे में लॉकडाउन के दौरान गिरफ्तार बाप बेटी की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कानून के खिलाफ वर्जी के मामले में गिरफ्तारी के दौरान हुई मौत मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन हाईकोर्ट के वकीलों ने जांच पर ही सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि जिस महकमे के लोग मुलजिम हों उनके इंसाफ की उम्मीद उनसे कैसे की जा सकती है। लिहाजा पूरे मामले की जाँच किसी आज़ाद एजेंसी से अदालत की देखरेख में कराई जाए। वाज़ेह रहे कि बाप बेटी की 19 जून को गिरफ्तारी के बाद एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। काफ़ी हंगामे के बाद बीते 1 जुलाई को 6 पुलिस एहलकारों पर कत्ल का केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अपोजिशन जमातें और दीगर जमाती तंजीमें हुकूमत के रवैये पर लगातार सवाल उठा रही हैं। Lawyers of Madras High Court gathered here to protest against the brutal murder of Jairaj and Benix. We appreciate the effort taken by people and activists and on the judicial activism. They have taken some action. 302 filed and accused were arrested. But the main question is the offence of police officer can inquired by the same police. That is the main question, whether it is the CBCID or CBI. Of course, initially Tamil Nadu government proposes CBI and the court directed for the initial action. For the time being, CBCID is inquiring the matter. But the real question is whether the police officer can investigate the offence of the police officer, whether it can be the inquiry in an unbiased manner. This is the main question. So the inquiry should be monitored by the High Court. The inquiry should be completed within 6 months. Everything should be monitored. All the proceedings of the CBCID or any agency. The main question of this demonstration is to create a new agency as per the direction of the Apex Court in Prakash case. The separate agency should be constituted. कोरोना के मामले में भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। रूस को पीछे छोड़ते हुए हिंदुस्तान दुनिया में कोरोना संक्रमित तीसरा देश बन गया है। देश में करीब 7 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली से एक अच्छी खबर भी है। मुल्क में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। हालत यह है कि भारत दुनिया में रूस को पछाड़ते हुए तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। यानी भारत दुनिया का तीसरा कोरोना इन्फेक्टेड मुल्क बन गया। भारत में अब तक कुल 6,73,165 मामले सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां 15,79,837 मामले हैं। और पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां 29,70,468 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुके हैं।
अब तो मुल्क में एक ही दिन में कोरोना के 20,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इतवार को मुल्क में 24 घंटे में 24,850 नए केस आए। 24 घंटों में 613 की मौत भी हुई। अब तक कुल 19,268 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि अभी तक मुल्क में कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। टेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं हम। एक 1 डे में वी डिड ऑलमोस्ट 2.5 लाख टेस्ट, जो कि पहले नहीं इतने कभी नहीं हुए थे। तो ये टेस्ट जितने हम करेंगे पॉजिटिविटी उसी हिसाब से बढ़ेगी। वेल, कम्युनिटी स्प्रेड मे बी पॉसिबली वी आर नॉट रियली हैविंग कम्युनिटी स्प्रेड, क्योंकि अभी आप लोग इतने बढ़ गए हैं तो उनके कांटेक्ट से हो रहे हैं। आई विल स्टिल हैव सम डाउट्स कि कम्युनिटी स्प्रेड शायद नहीं अभी हुआ है। सरकार का कहना है कि 10 लाख की आबादी पर इन्फेक्शन की शरह कम है और रिकवरी रेट यानी ठीक होने की शरह भी तेजी से बढ़ रही है। इतवार को जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से रिकवरी रेट 60.76% हो गई है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मरीज करीब 1 लाख तक पहुंच चुके हैं, लेकिन दिल्ली के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार की कमेटी में शामिल डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा का मानना है कि दिल्ली में कोरोना का उरूज खत्म हो गया है। दिल्ली में 24 घंटे में 2,244 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 99,444 हो गए हैं। इनमें से 71,339 लोग ठीक हो चुके हैं। है कि 27 जून से पहले लगभग 3400 केसेस होते थे, लेकिन अब जो है उनमें थोड़ी गिरावट भी आई है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि दिल्ली के अंदर थोड़ा सा शायद रुकाव आ रहा है। लेकिन इसके साथ में एक टैगलाइन भी है कि लोग जो हैं वो बिल्कुल भी लापरवाह ना हो कि अब ये चीज कम हो रही है। लापरवाही बिल्कुल इसके अंदर खामियाजा भुगत सकती है और ये जो भी कम हो रहा है ये थोड़े पीरियड के लिए हुआ है। इसको आगे ऑब्जर्व करना बड़ा जरूरी है। मुल्क में कोरोना के ज्यादातर मामले महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु से ही आ रहे हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि उन रियासतों पर नजर रखनी होगी जहां मामले तो कम हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कर्नाटक यूथ कांग्रेस ने येदियुरप्पा हुकूमत पर कोविड-19 के नाम पर लूट का इल्जाम लगाया है। रियासत में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की तादाद के बीच कांग्रेस हमलावर है। हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे के दौरान पार्टी लीडरान ने कहा कि बीजेपी सरकार राहत के नाम पर जरूरी सामानों की खरीदारी में भारी घपला कर रही है। सस्ते सामानों को भी कई गुना महंगे का बिल बना रही है, जो बेहद अफसोसनाक है। इस दौरान सैनिटाइजर, मास्क, दवा वगैरह के नाम पर भारी खेल हो रहा है। मुजाहरे के दौरान पूरे मामले की जाँच की मांग भी की गई। Either the state BJP-led government or the central BJP-led government, they have been looting the people in the name of COVID-19. Today we are facing such a big pandemic, COVID-19. People are dying, people are suffering. You don't have proper facilities for the patients. You don't get beds in the hospitals. They are looting in the name of patients. They are given contracts to private hospitals where the test rates is double. In the government hospital, either it's 2,000 something. At the same time, in the private hospital, for the same test, it's 4,000 something. And even the thing, whatever the ventilators they have purchased, the masks they purchased, the sanitizers, the gloves, whatever they have purchased in the name of COVID-19, everything is at the rate of double they have purchased it. Do we require such a government? At this point of time when people are dying, you are looting in the name of people. और तेलंगाना कांग्रेस कारकुनान ने चंद्रशेखर राव हुकूमत के खिलाफ लालटेन लेकर मुजाहरा किया है। लॉकडाउन के दौरान भी आ रहे बेतहाशा बिजली बिल के खिलाफ पार्टी ने बड़ा मुजाहरा किया है। इस दौरान रियासती सदर उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में कहा गया है कि हुकूमत तरह तरह के राहती कामों के दावे कर रही है। एक बार 500 रुपये देकर वाह लूटने वाली सरकार आम लोगों को 5-5 हज़ार के बिजली बिल भेजकर उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है। इस दौरान हुकूमत को खबरदार किया गया कि अगर ये बिजली के बिल वापस नहीं लिए गए तो पार्टी बड़े आंदोलन को मजबूर होगी। We have been demanding the TRS government that for the lockdown period, electricity bills in respect to the poor people and micro, small and medium enterprises must be borne by the government itself. Also, the billing that is coming in June is usually erroneous, and all the consumers in Telangana state have been charged in a higher slab.
the amount of burden put on the poor, the MSME enterprises, the others in Telangana state has been very high. We have held this protest throughout Telangana in front of the electricity offices and submitted memorandum to the Chief Minister with 3 demands. Below poverty line families who have the ration card the burden of the electricity bill for the lockdown period should be borne by the government. 2, MSMEs must be exempted from electricity bills for the lockdown period. 3, for everybody else, the billing must not be done in a non-telescopic way. It should be done in a telescopic way to bring down the burden on the general public. और आज से मुल्क के तमाम तारीख़ी मकामात सयाहों के लिए खोल दिए गए हैं। कोरोना बहरान के सबब तमाम तारीख़ी मकामात को बंद कर दिया गया था, लेकिन आगरा का ताजमहल कंटेनमेंट जोन में होने के सबब नहीं खोला गया है और दिल्ली का लाल किला पीर के रोज़ होने के सबब खोला नहीं गया। फिलहाल सयाहों को टिकट भी ऑनलाइन ही बुक करना होगा, क्योंकि कोरोना बहरान के चलते तमाम टिकट बुकिंग विंडो बंद ही रखे गए हैं। सयाहों को सोशल डिस्टेंसिंग की बाज़ारी करनी होगी। आज से ऐतिहासिक इमारतों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है। आज से आम जनता ऐतिहासिक इमारत में आ करके घूमने के लिए आ सकते हैं। दिल्ली का लाल किला ये, हालांकि आज सोमवार होने की वजह से यहाँ पे क्योंकि छुट्टी रहती है तो ये कल से खुलेगा, लेकिन यहाँ पर कोरोना काल के बाद से ये सारे स्मारक बंद थे और स्मारकों के लिए जो एक गाइडलाइंस जारी की गई है, उस गाइडलाइंस के अनुसार यहाँ पर जो भी आएगा वो टिकट के जरिए ही कहीं सीधे तौर पे अंदर में प्रवेश कर सकता है। उसके अलावा साथ ही साथ जब अंदर में आएगा तो उसको बाकायदे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। उसके साथ ही साथ उसको बाकायदे वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मास्क लगाना ज़रूरी होगा, सैनिटाइजेशन करना ज़रूरी होगा। इन सभी चीज़ों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, काउंटर टिकट कहीं पे भी सीधे तौर पे किसी भी स्मारक के लिए नहीं खुलेगा, किसी भी स्मारक के लिए नहीं मिलेगा। टिकट के जरिए ही आप अंदर में प्रवेश कर सकते हैं और सीमित संख्या ही यहाँ पर सीधे तौर पे प्रवेश करने की इजाज़त यहाँ पर दी जाएगी। सोमवार होने की वजह से लाल किले में छुट्टी है। कल से लाल किला ये खुलेगा और यहाँ पर लोग घूमने के लिए आ सकते हैं। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और मुल्क के तमाम तारीख़ी मकामात सयाहों के लिए खोल दिए गए हैं। इसी कड़ी में हैदराबाद का तारीख़ी चार मीनार भी खोल दिया गया है। हालांकि इसके बावजूद भी सयाहों की भारी कमी देखी गई है। हुकूमत की हिदायत के बाद इंतज़ामिया ने हर तरह की तैयारियां कर ली हैं। वहीं फेरी वाले दुकानदार भी पहुंचने लगे हैं, लेकिन ख़रीदार के नहीं पहुंचने से सब कुछ ठंडा नज़र आया। इस दौरान वहाँ मौजूद फेरी वालों ने हुकूमत के फैसले पर ही सवाल उठाए। कारोबार तो नहीं चल रहा, एक गिलास बेचा मैं बिस्मिल्लाह करा, टोटली कारोबार ख़त्म हो गया। 1-2 गिलास बेचना, शाम तक घर को चल जाना है, कारोबार का कुछ भी नहीं है। तो पहले कितने आते थे और आज कैसा? पहले बहुत चलता था कारोबार, चांदमार फरेवार रहता था लोग। अच्छा 20-25 गिलास बेचते थे 1 बजे तक, अब कुछ भी नहीं बेचना है। पूरे दिन में 2 गिलास 3 गिलास बहुत हो गए, उससे ज़्यादा नहीं बिक रहे। पब्लिक अभी नहीं आ रही, अब खुल गया तो भी नहीं आएंगे। मैं यहाँ चार मीनार पर ही कारोबार करता हूँ। अभी पेंडेमिक की तरफ से चार मीनार तो खुल गया है। हुकूमत तेलंगाना ने ये बोला है कि चार मीनार खोल देंगे। अभी चार मीनार को खोल के 2000 विजिटर को ये लोग एंट्री देंगे। कोरोना इस तरीके से हैदराबाद में बढ़ रहा, डेली 1500 1800, कल का ही डेट है 1850 केसेस है। तेलंगाना गवर्नमेंट काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है का काम कर रहा है। 2 हॉस्पिटल 4 करोड़ का आबादी है, 2 हॉस्पिटल है 4 करोड़ का आबादी है और 1800 केस है। कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 200 से 400 से ज़्यादा बेड नहीं है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कोरोना के लिए पहले आप काम करें, बयानबाजी ना करें। हेल्थ मिनिस्टर आता अपना बात बाल के जाता, मिनिस्टर आता अपनी बात करता। हुकूमत देख रही का, आवाम को 1500 रुपये दिए, गवर्नमेंट बोली 2 महीना लॉकडाउन करी, लॉकडाउन करके 1500 रुपये दिया गया। 1500 दे के बिजली के तौर पे 5-5 हज़ार रुपये लिया गया। क्या अच्छा गवर्नमेंट इस तरीके का गवर्नमेंट होता है? हम लोग, मैं पेशे से नेटवर्कर हूँ, अभी नेटवर्क बिजनेस चलता नहीं है, मास्क बेच के रोड पे पैसा कमा रहा हूँ। तो गवर्नमेंट तेलंगाना से मेरा इस वीडियो चैनल जी के माध्यम से बोलना ये है कि आप गरीब के लिए कुछ करिए। आप बोल रहे हैं लॉकडाउन करेंगे, कब करेंगे? 2 महीने करे, 1 केस नहीं था। तेलंगाना में 2-4 केस थे, 2 महीने करे, आप रोक नहीं पाए, टोटली फेल हो गए। इस खबर के साथ इस सलाम दक्कन में इतना ही।